Yes, once again, very good morning to all of you. So as you know that we are going ahead with our first chapter of pole science, that is power sharing. Okay. So few points we have already discussed in our last lecture. Hardly one page we covered. And in that one page chapter, we have read about the location, we have read about the structure or the, we can say, cultural situation of two countries. One was this I showed you on that day also, this Belgium country, which is surrounded by Germany, France, Luxembourg, and what is this? Netherlands. Okay. On other side, there is this North Sea. यहाँ पर sea है, but from other three sides, it is covered by these countries of Europe. Okay. Very small country, just like our Haryana state in size. On that day, we have discussed in detail. Then secondly, we have read about, just a second. Yes, we have read about this Sri Lanka country. Okay, so Sri Lanka is towards the southern side of our country, that is India. In the map you always see. So very less distance is there, very few kilometers away from India, from the southern coast of India. Sri Lanka is there. Okay, so it is our southern neighbor. जब हम बोलते हैं ना नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो श्रीलंका इज ऑफन नोन एज सदर्न नेबर, साउथ में पड़ने वाला नेबर ऑफ इंडिया. ठीक. तो हियर वी हैव रेड कि कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे. मेनली डोमिनेंस इज ऑफ विच पीपल? सिंहालाज पीपल, सिंहालाज और सिंहालीज स्पीकिंग पीपल. नॉर्मली या पॉपुलरली दे आर कॉल्ड सिंहालाज. लोगों को सिंहाला बोल देते हैं. लोगों को सिंहाला का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेशल है. ओनली मीनिंग इज दिस कि दोज पीपल दे स्पीक सिंहालीज लैंग्वेज, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सिंहालास. सो एज यू सी दिस येलोइश कलर इंडेक्स, ये दिस इज शोइंग अवर सिंहाला पीपल. dominance is there, near about 74% people in Sri Lanka, they are Sinhala speaking. And this side, this eastern side of Sri Lanka, and sorry, this eastern side and this northern side of Sri Lanka. ठीक है. Again I repeat, ऊपर नॉर्थ, ये आपने बार बार इसको याद कर लेना है. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दिस साइड ईस्ट, दिस साइड वेस्ट. तो वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस तमिल पीपल? दिस रेड कलर, ये नॉर्दर्न साइड ऑफ द श्रीलंकन कंट्री एंड ईस्टर्न साइड, एंड लिटिल बिट ऑन दिस टुवर्ड्स दिस वी कैन से वेस्टर्न साइड. तो दीज आर तमिल पीपल. नाउ तमिल पीपल आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories. One is Sri Lankan Tamils and one was Indian Tamils. ठीक है. Sri Lankan Tamils कितने थे? 13%, and the proportion of Indian origin Tamils, that proportion is near about 5%. ठीक है. So on that day in detail we have already discussed कि what is the difference between Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. क्या था difference? कि जो Sri Lankan Tamils हैं, their forefathers, they belonged to that very country, means they are the natives of that country from times immemorial. उनके जो forefathers हैं वो वहीं के रहने वाले हैं, उनकी आगे आगे की generations. On the other side, जो Indian Tamils हैं, they are those people whose forefathers went as plantation workers, from India during the colonial period, British colonial period. तो दोज इंडियन पीपल, जो इंडियन, जो तमिलनाडु है, वहाँ से उन लोगों को ले जाकर के वहाँ पे प्लांटेशंस में जिनसे काम करवाने के लिए जिनको लेके गए ब्रिटिश पीपल, तो वो लोग वहीं रह गए, वहीं सेटल हो गए. उनके जो आगे की जनरेशन्स हैं उनको कहा जाता है इंडियन तमिल. ठीक है. बट ओवरऑल ये जो तमिल हैं, दे collectively they are making 18% proportion of that country. Population का 18% है. अच्छा, one another interesting thing, when I was going in the details of this chapter, and I want to share with you, although that is not required here, but that is quite interesting, कि जो ये तमिल लैंग्वेज है ना, it is phonetically it is same, बट लिखने में ये बड़ी डिफ़िकल्ट सी लिखने में लगती है. जब हम राइटिंग पार्ट करते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इसकी साउंड ज़्यादा जो बोलने में आता है ना, स्पीकिंग में साउंड वेरी करती है, और साउंड से ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है. लिखने वाला सिस्टम थोड़ा कुछ और टाइप का है. ऑन द अदर साइड, ये जो दूसरी लैंग्वेज है, सिंहालाज लैंग्वेज है, दैट इज़ क्वाइट क्लोजर टू संस्कृत एंड हिंदी. जो हम अपने यहाँ हिंदी लिखते हैं ना, तो जो सिंहालाज लैंग्वेज है उसका जो सिस्टम है लैंग्वेज का, दैट इज क्लोजर टू संस्कृत एंड हिंदी, बिकॉज दैट सिंहाला लैंग्वेज कम्स फ्रॉम इंडो यूरोपियन सेट ऑफ लैंग्वेजेस. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है संस्कृत, और संस्कृत से निकलने वाली बहुत सारी लैंग्वेजेस,
जैसे अपनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, पंजाबी, मराठी, सो मेनी अदर लैंग्वेजेस, तो वो इंडो यूरोपियन सेट ऑफ लैंग्वेजेस उसको बोला जाता है, विद संस्कृत एज द मेन लैंग्वेज. तो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो कि सिंहाला लैंग्वेज इज क्लोजर टू दैट इंडो यूरोपियन सेट ऑफ लैंग्वेजेस, और जो तमिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. तो चलो, दैट कैन ऑल्सो बी ए रीजन, बट दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट टू बी शेयर्ड विद यू. एनी हाउ, सो वी हैव रेड हियर कि भाई ये बेल्जियम कंट्री एंड, और बेल्जियम का क्या था स्ट्रक्चर हमारा, बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड डच स्पीकिंग पीपल, they were in conflict, there were tensions between these two groups of people. Why? Because जो minority French speaking community थी वहाँ पे, थी भी या है भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दे वर कंपैरेटिवली बेटर ऑफ, दे वर रिच, एजुकेशनली दे वर ऑल्सो एडवांस्ड. बट जो मेजोरिटी डच स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे बेल्जियम में, दे वर कंपैरेटिवली, दे वर पुअर, दे वर नॉट वेरी एडवांस्ड, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड थे, एजुकेशनली दे वर बैकवर्ड. सो दैट बिकेम द रीजन ऑफ टेंशंस कि जो माइनॉरिटी में होते हुए भी बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो मेजोरिटी में होते हुए भी इतना अच्छा उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. तो ड्यू टू दिस रीजन देयर वर टेंशंस अमंग दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. नाउ इन द लास्ट पैरा वी हैव रेड कि हाउ दीज पीपल दे tried to solve their problems. How did these two countries they try to solve their conflicts? अब हमने वो पढ़ना है, ठीक है, हमने कर चुके हैं. Now I am going to start from here. You can see your book also side by side. Majoritarianism in Sri Lanka. ठीक है, तो first of all, the very first word majoritarianism, we should understand the meaning of this. Rest of the things will become very clear later on. You can see here in the glossary term what is the meaning. Majoritarianism means a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. मतलब ये है इसका कि जो लोग मेजोरिटी में होते हैं, एक बेटे आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, जो मेजोरिटी माइनॉरिटी होती है, इफ यू रिमेंबर इन 8th क्लास यू हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है दोज पीपल हु आर लेस इन नंबर, they are called minority. Those who are more in number, they are called majority. ठीक, but there are different criteria, there are different bases to define this. That criteria may be language criteria, that criteria may be this religion criteria, that criteria may belong to something else, कोई और attribute भी हो सकता है, बट जो कल्चर वाइज भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक वाइज भी हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर वी कैन डिस्टिंग्विश माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी. ठीक है, तो यहाँ पर ये किस बेसिस के ऊपर दे आर सेइंग मेजोरिटी श्रीलंका में, सिंहाला स्पीकिंग पीपल. when we are saying कि 74% are Sinhalas people या Sinhala speaking people, तो इसका मतलब on the basis of language वहाँ पे ये जो Sinhalas हैं they consider themselves to be in majority. ठीक है, रिलीजन इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर वो अपने आप को मेजोरिटी में मानते हैं और है भी वहाँ पे. ठीक, तो जब ये मेजोरिटी पीपल जिनका नंबर ज़्यादा होता है, व्हेन दोज पीपल थिंक कि वो जैसे चाहे वो कर ले, जैसे चाहे अपने कंट्री में कर ले, जो उनकी विश है उसके अकॉर्डिंग कंट्री के सिस्टम को चलाएं, अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली मेजोरिटी के व्यू को ध्यान में रखते हुए, तो देन दैट टाइप ऑफ बिलीफ इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, अच्छा इसको और वी कैन अंडरस्टैंड विद वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इन योर क्लास 45 स्टूडेंट्स आर देयर. ठीक है, तो मान लीजिए आउट ऑफ दोज 45 30 स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट 15 आर गर्ल्स. तो किसकी हुई मेजोरिटी? बॉयज़ की हुई. तो अब अगर बॉयज़ ये सोचे आपकी क्लास में कि जैसे हम दिल करे अपनी क्लास में वैसे ही काम करें, अपने हिसाब से क्लास के सिस्टम को चलाने की एफर्ट करें, तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग दिस, यू आर गोइंग बिहाइंड दिस मेजोरिटेरियनिज्म बिलीफ. मीन्स यू डोंट पे अटेंशन टू द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, उनको क्या चाहिए या उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या है, यू डोंट पे अटेंशन टू दैट, आप अपनी बात ही चलाते हो. दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग दिस बिलीफ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, on the same way, in the same manner, if girls number is more, 40 girls हों और 5 boys हों, तो वो 40 गर्ल्स अपनी ही बात चलाएंगी, अपनी बात को मनवाएंगी. दैट मीन्स दे आर अगेन फॉलोइंग द दिस बिलीफ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. सो जब जो
नंबर में ज़्यादा होते हैं लोग, जब वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. तो नाउ वी हैव टू स्टडी कि श्रीलंका में ये कैसे मेजोरिटेरियनिज्म, इट इज़ ए लॉन्ग वर्ड सो केयरफुली वी हैव टू स्पीक. तो हाउ श्रीलंकन पीपल, सिंहालाज पीपल, दे ट्राइड टू सप्रेस द माइनॉरिटीज़. कौन सी माइनॉरिटीज़? तमिल माइनॉरिटीज़ या बाकी की और जो भी हैं. व्हेन दे ट्राइड टू सप्रेस देयर फीलिंग्स, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. अब उन्होंने करा क्या इसके लिए? तो 1948 में, एज वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, सेम वे द ब्रिटिश वर द कॉलोनियल पावर ऑफ दिस श्रीलंका ऑल्सो. उनकी भी वो कॉलोनियल पावर थे. I request you all to please join the meeting in time. In between the lecture when teacher speaks, वो अपनी बात समझा रहे होते हैं, बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं, then it becomes very difficult. Disruption होती है ना, flow टूट जाता है, एक thinking process चल रहा होता है. Now you all are well mature, you understand. तो जो एक बात mind में चल रही होती है कि now I have to say this, that gets interrupted. So better to join in time. Why to come in between? Every time I remind you, but still some students don't follow this. Anyhow, coming to this, so England, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश पीपल, दे वर द colonial power ऑफ श्रीलंका ऑल्सो. जैसे हमारे ऊपर दे वर रूलिंग, इन द सेम मैनर दे वर रूलिंग श्रीलंका ऑल्सो. तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर इन 1948. तकरीबन हमारे साथ ही हम कह सकते हैं, हार्डली ए डिफरेंस ऑफ 1 ईयर. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग थे, दे ट्राइड टू, you can see, they try to secure dominance over government by virtue of their majority. मतलब by virtue का मीनिंग है कि only they paid attention कि we Sinhala people are more in number, so the system of our country, government of our country should run according to our beliefs. Our government should do all the works according to our needs, our मतलब Sinhala's people's needs. तो they try to think in that manner. ये अब उनके हाउ दिस आइडिया केम टू देयर माइंड, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि दे वर इन मेजोरिटी. इसी बात का जैसे हम बोल सकते हैं ना, अहंकार कह सकते हैं एक तरह से, एक तरह से प्राइड कह सकते हैं कि हम ज़्यादा है नंबर में तो हमारे हिसाब से ही काम होना चाहिए. ये वाला उनके दिमाग में दिस टाइप ऑफ फीलिंग वाज देयर. ठीक है. तो देन दे अडॉप्टेड वेरियस सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहाला दिस सुप्रीमेसी. ठीक है. मतलब उन्होंने मेजर्स का मतलब, देन इन ऑर्डर टू डू ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने वट एवर स्टेप्स दे टुक, वट एवर वर्क्स दे डिड इन द गवर्नमेंट, those are called majoritarian measures या steps. Now in next para, full para, please underline, you can make points also here. Now here steps are given कि what did they do, करा क्या उन्होंने सिंहालास ने. ठीक है. तो एक तो उन्होंने किया 1956 में, कितना हो गया आफ्टर 1948, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years, मतलब जब वो अपना गवर्नमेंट सेट हो गई वहाँ पे, तो दे पास्ड वन एक्ट. उसमें क्या था? सिंहाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज and they disregarded मतलब disrespected, ignored which language? तमिल. मतलब उन्होंने कहा कि जो भी ऑफिशियल काम होंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट के, ऑल दोज ऑफिशियल वर्क्स वुड बी डन इन सिंहालास लैंग्वेज. तमिल लैंग्वेज को टोटली उन्होंने इग्नोर कर दिया कि तमिल लैंग्वेज में कोई काम नहीं होगा, कोई ऑफिशियल वर्क विल नॉट बी डन. फॉर ऑल ऑफिशियल थिंग्स सिंहाला लैंग्वेज विल बी यूज्ड. तो अब इससे जो तमिल लोग थे, दे फेल्ट वेरी बैड. दे फेल्ट कि भाई देयर लैंग्वेज हैज़ बीन डिसरिस्पेक्टेड. तो एक लैंग्वेज को आपने कभी ध्यान करें, अगर कोई किसी मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग यू, किसी लोगों को अगर ख़त्म करना हो, तो ये नहीं होता कि उनको फिजिकली मारा जाए, है ना, सबका मर्डर कर दो, मास वायलेंस कर दो, सबको मार दो, ये नहीं होता है. ये कहा जाता है कि कोई अगर लोगों को ख़त्म करना है तो उनके कल्चर को ख़त्म कर दो, उनकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दो, तो वो लोग अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं. तो ऐसे ही जब कोई लैंग्वेज को ख़त्म किया जाएगा, अगर सप्रेस करते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली, द कल्चर ऑफ दोज पीपल दैट कम्स टू एन एंड. जो अभी हम अपने यहाँ भी वी आर ऑब्जर्विंग. अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो हम लोग, ऑल दो अवर मीडियम ऑफ एजुकेशन इज इंग्लिश, नो प्रॉब्लम इन दैट, एज ए मीडियम इट्स ओके. बट वट आर वी पीपल डूइंग? मेजोरिटी ऑफ अवर पीपल, दे आर ब्लाइंडली following the European culture without thinking
कि क्या वो हमारा कल्चर है, डज दैट सूट टू अस, इज दैट रिक्वायर्ड फॉर अवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमारे लिए कोई वो चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, नॉट एट ऑल। बट हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली वी स्टार्ट फॉलोइंग। तो अपने कल्चर को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, वी फील कि अवर कल्चर इज़ बैड, इट इज़ बैकवर्ड कल्चर, और जो वेस्टर्न कल्चर है दैट इज़ वेरी फाइन, वेरी ब्यूटीफुल, एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अपने आप को ही ख़त्म करते जा रहे हैं, वी आर लूजिंग अवर आइडेंटिटी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा लेटर ऑन इन द फ्यूचर, तो हम लोगों को अपना कल्चर ही भूल जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे सीधे सीधे वर्ड्स में, ना हम अपने इंडियन कल्चर के रहेंगे, ना हम वेस्टर्न, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वी आर आउटसाइडर्स फॉर देम, और अपना कल्चर वी आर लिविंग, तो फिर कहाँ जाएंगे, वी विल लूज अवर आइडेंटिटी, वी विल लूज अवर रिकॉग्निशन। तो द सेम टाइप ऑफ फीलिंग केम इन द माइंड्स ऑफ तमिल पीपल कि भाई जो तमिल लैंग्वेज है दैट इज नॉट बीइंग गिवन रिस्पेक्ट, तो अल्टीमेटली वी विल लूज अवर आइडेंटिटी इन दिस श्रीलंकन कंट्री। उनके मन में ये बात आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, हियर इन बिटवीन यू कैन अंडरलाइन। अब सेकेंडली, एक तो ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंडली क्या किया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस होती थी, यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होती हैं या जो फैकल्टीज़ होती हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के काम होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी जो गवर्नमेंट थी, दे स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू सिंहालाज, उन कामों में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, एजुकेशन में भी सिंहालाज लोगों को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो तमिल पीपल थे, वेदर श्रीलंकन या इंडियन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट तमिल पीपल, तो तमिल पीपल को हर काम में पीछे पीछे रखा जाने लगा। गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो प्रेफरेंस थी दैट वाज बीइंग गिवन टू सिंहालाज पीपल, एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो भी काम होते थे उसमें भी सिंहाला पीपल वर गिवन मोर प्रेफरेंस। तो इससे भी जो पीपल थे, तमिल पीपल थे, दे फेल्ट वेरी बैड, ठीक है। एंड लास्टली, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट, स्टिपुलेटेड मतलब फोकस्ड दैट या टोल्ड दैट कि क्या होगा, स्टेट शेल क्या है ये, प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, प्रोटेक्ट एंड फोस्टर, वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ पे एज आई रेड अर्लियर ऑल्सो मेनी रिलीजन्स आर देयर, वहाँ पे हिंदुइज्म इज़ देयर, क्रिश्चियनिटी इज़ देयर, इस्लाम इज़ देयर, वहाँ पे बुद्धिज़्म इज़ देयर। तो मेजोरिटी जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल है उनका जो रिलीजन है दैट इज़ बौद्ध रिलीजन, ठीक है, बुद्धिज़्म है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, दैट विल प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब उसकी प्रोटेक्शन करेगी फ्रॉम अदर रिलीजन्स, एंड फोस्टर, फोस्टर होता है टू एनकरेज, या वी कैन से टू प्रोपेगेट, और सीधे हिंदी में हम कह लें बढ़ावा देना, एनकरेज करना, आगे आगे लेके आना, कि सिर्फ जो बुद्धिज्म रिलीजन है दैट विल बी प्रमोटेड, दैट विल बी प्रोपेगेटेड, दैट विल बी एनकरेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब श्रीलंकन स्टेट, स्टेट यहाँ कंट्री के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कि भी वो बुद्धिज्म को ही बढ़ावा देंगे। दैट मीन्स, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट मीन्स पीपल फॉलोइंग अदर रिलीजन्स विल नॉट गेट दैट मच इम्पॉर्टेंस एज द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म विल गेट। तो अब ये सारे जो स्टेप्स लिए, ये 3-4 जितने भी स्टेप्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड मेजोरिटेरियन स्टेप्स या मेजोरिटेरियन मेजर्स। हु टुक दीज मेजर्स, कौन सी गवर्नमेंट ने लिए, जो सिंहाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनी वहाँ पे आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस इन 1948, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यू विल गेट वन क्वेश्चन कि व्हाट वर द विच टाइप ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स वर टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो देन यू हैव टू टेक पॉइंट्स फ्रॉम दिस पैरा, यू कैन मेक 3 या 4 पॉइंट्स, 3 बन जाएंगे हमारे पॉइंट्स, यू कैन टेक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो फिर नाउ इन नेक्स्ट पैरास व्हाट हैज बीन टोल्ड, ये पूरे दोनों पैरास में वी हैव बीन टोल्ड कि all these government measures, they increased the feeling of, one very interesting word has come here, alienation among the Sri Lankan Tamils, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने ये सारे काम करने स्टार्ट कर दिए वहाँ पे, तो जो तमिल पीपल थे, दे हैड द फीलिंग ऑफ, दे स्टार्ट मतलब दिस टाइप ऑफ फीलिंग स्टार्टेड कमिंग टू देयर माइंड्स कि वी आर एलियंस हियर। अब एलियन का मतलब वो नहीं होता, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो एलियन समझते। आपको याद है एक मूवी आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद वो कोई मिल गया मूवी थी, जिसमें वो जादू वाला था ना, एक हीरो के साथ में उसका वो है बन जाता है साथी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है। तो वो जादू जादू उसको क्या बोलते थे, एलियन है। तो क्या होता है एलियन का लिटरल मीनिंग, नॉट बिलोंगिंग टू अस या नॉट बिलोंगिंग टू दिस प्लेनेट, अगर हम जादू वाले एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो वही मीनिंग नहीं होता। एलियन का मतलब होता है वो चीज़
या वो लोग जो हमारे जैसे नहीं हैं या हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सारे उनको हम एलियन मानते हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे आप साइकिल पे या एक्टिवा पे कहीं जा रहे हो, बार बार बहुत डस्ट स्टॉर्म चल रहा है, तो वो आंधी चलने में आपकी आंखों में मान लो कोई डस्ट का कुछ कण पड़ जाता है ना, तो आप आंखें मलनी शुरू कर देते हो। तो आपको क्या लगता है, यू फील वेरी इरिटेटेड, आईज में इरिटेशन होती है। आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो जो डस्ट आपकी आईज में पड़ी है वो निकल जाए, बिकॉज दैट डस्ट पार्टिकल इज एन एलियन फॉर योर आई। हमारी आंखों के लिए वो एक बाहर का एक चीज है जो हमारी आंख में नहीं होनी चाहिए थी, है ना। आई होप नाउ यू कुड अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चीज नहीं है, सूटेबल नहीं है, वो हमारे लिए उसको हम कह देते हैं दैट इज एलियन। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो तमिल पीपल हैं श्रीलंका के, दे स्टार्टेड फीलिंग दिस थिंग कि वी वट एवर स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द सिंहाला गवर्नमेंट, दे आर फेवरिंग देम, सिंहालास पीपल को दे आर फेवरिंग, और हम सारे जो है तमिल्स हैं, हम इनके लिए क्या होते जा रहे हैं, हम एलियन होते जा रहे हैं। मतलब हमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, या वी आर बीइंग इंटेंशनली वी आर बीइंग इग्नोर्ड, हमें जानबूझ के पीछे रखा जा रहा है। दिस टाइप ऑफ एलियनेशन मीन्स अलग थलग फील करना, है ना, मेन स्ट्रीम के साथ अपने आप को ना जोड़ पाना, अपने आप को उसके साथ असिमिलेट ना कर पाना। तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग स्टार्टेड कमिंग टू देयर माइंड्स। तो फिर अगर ऐसी फीलिंग्स होगी, इफ इन एनी कंट्री, it may be Sri Lanka, it may be any other country of the world, if some people of the country they start having this type of feelings, then that country can never make progress। ठीक है ना, कुछ एक ग्रुप अलग ही फील करे तो कंट्री की ओवरऑल हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट ए गुड थिंग, ये कंट्री के लिए कोई बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, तो फिर वो लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, वो उनको दे आर नॉट गिविंग दिस तमिल पीपल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, they are being discriminated, as you can read here, discriminated against them in getting the jobs and other opportunities and ignored their interests। मतलब उनको ये फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि हमें तो हर तरह से इग्नोर किया जा रहा है, हमें एजुकेशन में भी पीछे छोड़ा जा रहा है, हमें गवर्नमेंट जॉब्स में भी पीछे छोड़ रहे हैं, हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी लैंग्वेज वाइज जो भी काम है, कुछ भी है, so many things are there in any country, तो we are being intentionally we are being kept behind। किसके बिहाइंड, बिहाइंड द सिंहाला स्पीकिंग पीपल। ठीक है, तो ये इस टाइप की फीलिंग्स आनी उनके दिमाग में शुरू हो गई। तो व्हेन पीपल हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, तो फिर क्या होता है इन एनी कंट्री, struggle starts, struggle among the different sections of the society that comes on the forefront। forefront होता है सामने आ जाना, जो चीज़ें छुपी हुई भी होती हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो कंट्री में तो वो चीज़ों का असर सामने भी दिखने लगता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने व्हाट डिड दे डू, यू कैन सी इन दिस, यू कैन रीड इन दिस पैरा। अब वो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। पार्टी का मतलब ये यहाँ वो खाने पीने वाली पार्टी नहीं, पार्टी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, कि अपने इंटरेस्ट को इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर बेनिफिट्स, देयर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, दे स्टार्टेड मेकिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टार्ट कर दिया स्ट्रगल, मतलब जैसे हम कह देते हैं ना, मूवमेंट्स शुरू कर दी, धरना रैली स्टार्ट कर दी, मतलब दे मेड यूज ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज कि भाई वाई तमिल इज बीइंग इग्नोर्ड, वाई तमिल पीपल आर बीइंग इग्नोर्ड, इन बातों की तरफ दे स्टार्टेड पेइंग अटेंशन। फिर देन दे डिमांडेड, वन वर्ड हैज कम हियर, दे स्टार्टेड डिमांडिंग रीजनल ऑटोनमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। रीजनल ऑटोनमी का मतलब होता है कि भाई चाहे ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री श्रीलंका, that is Sinhala government, but still wherever Tamil people are living, they should be given some freedom to run their own local governments। जहाँ जहाँ भी तमिल लोकेलिटीज में या तमिल डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहाँ पे तमिल पीपल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गवर्न। रीजनल मतलब रीजन वाइज, तो कौन सा रीजन, एक कंट्री में तो मेनी रीजन्स कैन बी देयर, तो यहाँ पर रीजन का मतलब है, लेट मी शो द मैप अगेन, यू कैन सी दिस साइड, ये वाले जो पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ भी तमिल पीपल रहते हैं, ये सारे, ठीक है भी, इन एरियाज में तमिल ओरिजिन वाले लोगों को अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको ऑटोनमी दी जाए या उनको फ्रीडम दी जाए। ठीक है, अच्छा, उसके लिए दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग।
फिर by 1980s several political organizations were formed. You can underline this line, important है ये. Formed demanding an, but mute yourself, demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. जो भी हमने मैप में देखा ना, जहाँ पर तमिल पीपल आर लिविंग इन मेजोरिटी, तो उन्होंने वहाँ पे डिमांड स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पे क्या हो, तमिल ईलम, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम. ईलम ये तमिल वर्ड है, ईलम वर्ड का मीनिंग है स्टेट, ठीक है. भी उनको फ्रीडम दी जाए, उन तमिल एरियाज को अलग किया जाए, उनको सेपरेट किया जाए. सेपरेशन मांगनी स्टार्ट कर दी, और किसके लिए, तमिल लोगों के लिए. अब आप ध्यान से सोचो, वी आर टॉकिंग अबाउट तमिल दिस श्रीलंका कंट्री. अब आप दोज हु वांट टू आंसर दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अब आप बताइए, इज इट ए राइट थिंग या इज इट ए राइट डिमांड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कंट्री? ध्यान से सोच के बताना है आपने. Anyone can unmute if you are listening to me attentively. I hope I am able to convey my ideas to you, what are written in the chapter. Tell me quickly, then I tell you the reason. हाँ जी भाई, आप तो ना तो वीडियो ऑन करते हो. Anyone? Should I name any student? Sukhdeep. I think हाँ, let me repeat my question. Do you think कि ये जो तमिल इलम की डिमांड थी, was it a right demand? no, it was not a right demand, because if it had if because it would show a political instability in the country, and it would make other countries aware and easier to attack and Yes, take very over the right. control. Very right. Perfectly right answer. This was what I was expecting. कि अब कंट्री में तो कई तरह की वेराइटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज है. तो अब अगर यही सारे कहना स्टार्ट कर दें कि हमें अलग कर दो, हमें हमारा कंट्री अलग बना दो, ऐसे तो फिर कोई कंट्री विल नेवर रिमेन यूनाइटेड. अब आप एक मिनट के लिए श्रीलंका की जगह इंडिया को सोच के देखो अपने मन में. तो इंडिया में तो मेनी वेराइटीज़ आर देयर, है ना. थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ पीपल आर लिविंग, उनके कल्चर, लैंग्वेज, वे ऑफ लिविंग, सो मेनी थिंग्स आर डिफरेंट. बट एज ए यूनाइटेड कंट्री वी आर स्ट्रॉन्ग. तो अब अगर सारे ये कहना स्टार्ट कर दें, नहीं जी हमारी तो लैंग्वेज अलग है, हमें अलग कर दो, हमारा कल्चर अलग है, हमें अलग कर दो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. विद इन अगर अलग हो भी जाए तो भी उसके अंदर भी फिर आगे और प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी. तो दैट इज़ नॉट ए करेक्ट सोल्यूशन. करेक्ट सोल्यूशन क्या था, पर चलो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट देम, कि उन्होंने ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी. अब करेक्ट सोल्यूशन तो ये होना चाहिए था कि वो अलग से मांग ना करते, रादर दे शुड आस्क देयर गवर्नमेंट टू accommodate the Tamil people also, to adjust the Tamil people also. They should ask their government to pay attention to the demands of Tamil people also, कि उनको भी प्रेफरेंस मिले, उनको भी इक्वल राइट्स मिले. ये डिमांड होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हमें हमारे लिए अलग स्टेट बना दो. ये डिमांड रॉन्ग थी. तो फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट, जो होना एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है. तो वहाँ पे देयर स्टार्टेड सिविल वॉर, ठीक है. अब ये जो डिमांड है, वुड इट बी लाइक्ड बाय सिंहालास जो मेजोरिटी में है? क्या वो चाहेंगे कि उनके कंट्री के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अलग अलग हो जाए? वो कभी भी नहीं चाहेंगे. तो यहाँ पर हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है. सिंहालास वर नॉट रॉन्ग इन ए वे. मेजोरिटी है तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि उनकी भी बात भी मानी जाए. हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अगर मेजोरिटी है तो क्या उसकी गलती है कि वो मेजोरिटी में है, क्या उनकी कोई मिस्टेक होगी कि वो मेजोरिटी में है? तो मतलब डोमिनेंस जो है ना, वो अगर माइनॉरिटी पीपल भी अपनी बात को ज़बरदस्ती से मनवाते हैं, देन इट इज़ इक्वली रॉन्ग. वो भी किसी कंट्री के लिए दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग, ठीक है. लेटर ऑन in the next chapters I will draw your attention to this problem in our country also. अभी हमने नहीं बात करनी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है. तो वहाँ पे ड्यू टू ऑल दीज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्टेड अमंग द सिंहालास एंड तमिल पीपल. तो सिविल वॉर क्या होता है, यू कैन रीड हियर फ्रॉम द ग्लॉसरी टर्म. सिविल वॉर होता है ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल लाइन है. those people who have, those students who have interest in the news, in the political situation of our country also, yeah, in the world, you would be very much
इंटरेस्टिंग टू नो द मीनिंग ऑफ दिस। तो सिविल वॉर का मीनिंग क्या हो जाता है कि आपस में ही लोग लड़ लड़ के खत्म हो जाए, वायलेंटली एक दूसरे को मारा मारी करे। तो अगर एक ग्रुप ऐसे करता है तो ऑब्वियसली सेकेंड ग्रुप के पीपल वो खाली नहीं बैठे रहेंगे, दे विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड। तो अगर दोनों तरफ के लोग स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दीज वायलेंट मेजर्स, दोनों तरफ के लोग अगर वेपन्स उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, तो फिर होगा क्या? अल्टीमेटली एक दूसरे को मारेंगे। तो इससे कंट्री का भला तो नहीं हो सकता है, वो फायदा तो नहीं होगा सोसाइटी का, रादर आपस में टेंशन ही बढ़ती हैं, ठीक है, नुकसान होता है कंट्री का। पॉलिटिकली तो होता ही होता है, वर्ल्ड वाइड भी वो कंट्री वीक बनता है ना, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस हो पाती है ना ही सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल दैट कंट्री इज गोइंग टू लूज इट्स स्टेटस इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो बट वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पार्ट अप टू दिस। तो यहाँ पर क्यों क्यों हुआ ये सारा कुछ, अगर हम अटेंशन पे करें तो रीजन वाज कि सिंहाला गवर्नमेंट, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द अदर्स, they started ignoring the needs and demands of other people. They did not pay attention to their equality, their equal rights, उनकी तरफ they did not pay attention. But अब now the second case जो भी हमने पहले पढ़ा था about Belgium country, problem तो वहाँ पर भी ये थी। In that country also this civil war could have started. अगर आपस में ना वो सेटलमेंट करते तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन देयर। बट बेल्जियम कंट्री के जो लोग थे, दे थॉट वेरी केयरफुली, they paid attention to the welfare of the people, all the people of their country, and they started to accommodate their differences. एकोमोडेशन है ना ये लिखा हुआ वर्ड, तो एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? टू एडजस्ट, कि जो भी चीज़ें हैं उनको, जो भी लाइफ में है, लाइफ मतलब यहाँ पर कंट्रीज लाइफ, तो जो भी बेल्जियम कंट्री में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है वहाँ पे, उसको कैसे सेटल किया जाए, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो एडजस्टमेंट को ही बोला जाता है एकोमोडेशन। एक एकोमोडेशन होता है, घर को भी बोलते हैं, रहने वाली जगह को, कि आई हैव दिस एकोमोडेशन ऑफ 2 रूम्स हाउस या 5 रूम्स हाउस, वो भी होता है। बट यहाँ पर जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, एकोमोडेशन का मतलब टू एडजस्ट वेराइटी ऑफ पीपल, वेराइटी ऑफ कल्चर्स इन ए कंट्री, ठीक है। तो अब बेल्जियम में व्हाट डिड दे डू, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट। सो लेट मी सी द टाइम ऑल्सो, hardly 4 minutes are left, so I will not start the points. I am going to tell you about this. You can underline. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब उन्होंने क्या किया, विद इन दीज 23 ईयर्स, 70 से लेके 93 तक, दे अमेंडेड। अमेंडेड क्या होता है? अमेंडेड होता है टू मॉडिफाई, टू रिफॉर्म, टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस, सुधार करना जिसको बोलते हैं ना, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना, मॉडिफाई करना उसको, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो अमेंडमेंट किए, कुछ सुधार किए उन्होंने, किसमें? इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। मतलब जब उनको फर्स्ट टाइम किया तो अगेन दे फेल्ट कि नहीं, स्टिल सम चेंजेस कैन बी मेड, फिर सेकेंड टाइम किया, देन अगेन दे डिड फॉर थर्ड टाइम, फिर देन अगेन फॉर फोर्थ टाइम। तो 4 टाइम उन्होंने, मतलब दैट व्हाट डज दिस शो, कि इसका मतलब है दोज पीपल वर वेरी मच सीरियस टू रिमूव दीज टेंशंस। जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो इसका मतलब वो सच में चाहते थे कि उनके कंट्री में प्रॉब्लम ना हो, उनका कंट्री एक बढ़िया कंट्री, डेवलप्ड कंट्री बना रहे। सो फॉर दैट रीजन दे केप्ट ऑन थिंकिंग केयरफुली, और एंड इन दैट प्रोसेस 4 टाइम्स दे मेड चेंजेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक वो ठीक ठाक चल रहा है। अब आप देखो कितने, आज क्या टाइम है, 2021, तो देख लो आप 93 से लेके टिल दिस टाइम, टिल दिस डेट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक, मतलब नॉर्मली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहाँ पे। तो इसका मतलब कि वो जो भी उन्होंने सोचा दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। स्टिल जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो होता ही है फॉर एनी कंट्री, चाहे वो बेल्जियम है, श्रीलंका है, या इंडिया है, अमेरिका है, कुछ भी है। तो पिक्चर परफेक्ट तो कोई कंट्री नहीं होता। तो अच्छा कंट्री वही है विच ट्राइज टू पे अटेंशन टू ऑल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस करके उन्होंने 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स किए अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या अमेंडमेंट्स किए, दैट वी विल स्टडी टुमारो। ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं, यू कैन मार्क देम एज नंबर 1 2 3, वो नंबरिंग कर लेनी है हमने। टुमारो वी विल रीड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। बिकॉज इफ राइट नाउ इफ आई स्टार्ट, तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन जस्ट इवन 1 पॉइंट, ठीक है जी, क्लियर बेटे? सो यू टुडे व्हाट यू हैव टू डू, you have to read up to this part,
underline the important sentences, important, you can make the points. And secondly, just a second, let me stop the recording first, then I tell what to do.